हेलो। ठीक है। समय वेक्टर सम प्रॉब्लम सॉल्व करे तले है ना। प्रॉब्लम फिक्स करियो तो अच्छा जेति रिजोल्यूशन प्रॉब्लम देखले करि पाला तो कोड आलन कोन आलन को 17 नंबर क्वेश्चन के अब मु पठे देली कि अच्छा मु पठे देली मोबाइल ले हो आ बाहर दो हैला ये क्वेश्चन बाहर करो। अच्छा मु ये क्वेश्चन जेति जो वेक्टर करिया पे चल हैला तो सॉल्व करो ये जो प्रॉब्लम रे एटला सॉल्व करिया हैला तो अच्छा केमति हैला कहलो एटा केतने इतले 200 न्यूटन this angle equal to 60 degree and this is perpendicular huh? So here we have to calculate the value of tension T1, value of tension T2 huh? So here a free body diagram draw करथिले हमें। So in free body diagram we have done this is 200 Newton, this one equal to T1 and this is T2 okay। So now we are taking y axis and we are taking this is huh? pivot diagram तुम ड्रॉ करियो तुम सिकेली से है ना। So now it is T1 asila, it is 60 degree ala. So I can write this also be 60 degree. So I get this is T1 cos 60 ala, and this is become T1 sin 60 ala. So se ko sum of horizontal force should be 0 because it is in equilibrium condition. So for that case I can write that T2 in left direction and T1 is right direction. So I can write this is plus and this is minus. So minus T1 cos 60 equal to 0. So you can take T2 is equal to T1 cos 60. So cos 60 value kete astila. So T2 is equal to T1 cos 60 equal to 1 by 2. So T1 equal to 2 T2. So we get a relation between T1 and T2. बुझल? Then after we solve the next function, that this one equal to this one. In summation of vertical force equal to कितना आसवा दरकार 0. Sum of vertical force equal to 0. So vertical force, this one is the vertical force, this one is the vertical force, and both are in opposite direction. So I can write that T1 sin 60 minus 200 Newton equal to 0. So we have already been solving the previous class in I cap JK format, but I am not writing here I cap JK. We can definitely solve this question after understanding what is the meaning of this component pattern. So now T1 sin 60 equal to how much? Root 3 by 2 is equal to this is 200 Newton. So I can get T1 equal to 400 Newton by root 3, and we have a relation between T1 equal to this 2T2. So I can put the value of here that 2T2 T1 you got so 2T2 equal to 400 by root 3. So 2 cancel out, this is equal to 200 by root 3. So you get the answer. Alright, we have already been solved this question. Achha. Then out a question देख लो उधर. Okay. Now we will solve another question. out a छोटे question solve करियो. Then after हम लोग उसके बाद दूसरे question में जाएंगे. ठीक है? तापर out a question देखिए. out a question करियो अब. ठीक है हल्का डिफिकल्ट हो डिफिकल्ट है खाली ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା क्वेश्चन कौन କହିଛି let us this is a system it is arranged like this and here a ball solid or anything it may be a ball having mass 200 Newton radius equal to let us given let us and another ball is present here. Another ball is present here just above this one and this ball have also a mass of 200 Newton. That is the radius equal to 2 meter. Here its radius is also 2 meter. The radius is 2 meter and its radius is also 2 meter. Now so let us this distance equal to
7, 2, 2, 4, 3, 8, 8 meter, or I can write 7 meter. Depends upon it. The question is that find the reaction at A. It is reaction আছে because এইটা কোসে কোন করছে পুশ আপ করছে না পুল করছে তো it is given action so তଳୁ ଗୋଟେ কোন ମିଳିବ reaction like this ଇଏ ୟାକୁ ଗୋଟେ କୋନ ଦଉଛି action so ଇଏ ତା କୋନ ଦବ reaction ଦବ and ଏଠି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି action reaction अच्छा ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ so this is also a reaction ବୁଝି ହଉଛି ନା ଆଉ clear ତ now from this concept ଟା solve କରିବାକୁ ହେଲା so what happens solve कर देखो so in this type of question first we have to solve the upper body not in the lower body first you will think about the upper body because ऊपरे जो बॉडी टा अच्छी है या ऊपरे इजीली सॉल्व करियो बिकॉज़ यार वेट पड़े लगछ डाउनवर्ड लगछ बट ये एटी अछि तो या ऊपर वेट टा यू कैन नॉट सी बट यू कैन ओनली सी द रिएक्शन so it is reaction बार के अपन बुझियो जी so now in this condition what happens now taking this body in upward direction out या को नहीं जो free body diagram flow करियो so initial condition weight क्या आस्ते रे w इक्वल टू mg अच्छा नेक्स्ट ये या को मारू जी ये ताको डेफिनेटली मारू so ये जो एपटे फोर्स होची ये को मुड़ दो एपटे दो so I got a reaction force due to the ball B बुझा लगे नहीं and another this ball is giving an action in this wall a wall ऊपर उठ action दोची so ये wall टा यहाँ पर कोटे कौन दबो reaction दबो so the wall gives a reaction this is reaction due to wall okay so now we have to just break it into components x axis and y axis the most important thing that you don't know what is the angle here so first you have to get the angle so let us center to center distance कितना होगा what is 4 अच्छा so now just join these two lines okay join these two lines now what happens if this is 4 huh? how much this radius equal to 2 meter how much this is not radius this is 3 meter because total equal to how much 7 how much is 2 meter and this one is 2 meter so 2 and 2 4 then remaining 7 3 so now you got a right angle triangle after you getting a right angle triangle now this one is 3 this one is 4 now you have to get the angle theta this angle is required if you get this angle then definitely you can get this angle because they are parallel lines ठीक है जी बुझे ना तो अच्छा now I can write sin theta equal to p by h cos theta equal to b by h so you have to take cos theta equal to b by h so cos theta equal to 3 by 4 okay you got cos theta equal to 3 by 4 so how much theta na theta equal to cos inverse 3 by 4 so now cos inverse 3 by 4 equal to theta confirm अच्छा तुम कहली प्रीवियस वीडियो मोर सब देखिया पे प्रीवियस वीडियो रे एंगल कैलकुलेशन रो सिखि थे देखि दिलो सेठी एंगल कैलकुलेशन सिखि दिले sin 37 sin 1 से टाइप ये कंडीशन को पेपर बात करे कंडीशन केटा बात करे देखिया कंडीशन है ना अच्छा सो नाउ हियर 3/4 वैल्यू केता से केलो 75 अच्छा 0.75 है तो हमें ये बाहर करियो sin थीटा cos थीटा एंगल बाहर कर सिखु धर हम कहली sin 45 रो बोली केते 1/√2 तो 1/√2 बोली केते केते 0.86 तो अछि 1√3 this one is equal to √3/2 60 डिग्री बोली केते थिला √3/2 this is 0.86 हैला this one is 0.7 बुझा लगे नहीं so this angle equal to 0.75 so कहाँ भीतर आसला ताले 45 डिग्री आउ 60 डिग्री भीतर आसला sin 45 60 डिग्री भीतर आसला अच्छा तो sin केतरे वैल्यू 75 देखिबा हैला सो अप्रोक्सीमेटली यदि कंसीडरेशन परिवाटा को 75 अछि तो ओरिजिनल डिफरेंस केते अछि भीतर 16 0.16 ना एंगल केते डिफरेंस अछि कहलो 45 टू 60 भीतर 15
तो एवरी 1 डिग्री को यू कैन राइट 0.1 बुझे लगे नहीं तो आम जी 75 तो एपटू एक्सट्रा के 5 45 प्लस 5 sin 50 तो अप्रोक्सीमेटली sin 50 ର वैल्यू केते आसी 3/4 तो sin 0.75 कार वैल्यू ताला 50 रो आसला तो cos रे सेटा कार वैल्यू आसतो 90 माइनस कर दो cos 40 डिग्री रो तो ए एंगल टे कार आसला ताले 40 डिग्री रो सो नाउ आई गेट थीटा इज इक्वल केते आसला ताले 40 डिग्री बुझियला ना तो बुझिला तो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है हबा दरकार आसी पारे न आसी पारे बट यू हैव टू रिमेंबर सम एंगल्स है किसी इंपोर्टेंट एंगल्स कोई तुम लोग तो तुम सेटा को मन रखियो बुझिला नाउ आई कैन सॉल्व दिस वन हियर if this is 40 degree so I can get this is 40 degree बुझिला so I get two components एटा में दुटा कंपोनेंट पाइबा कोन पाइबा तले RB cos 45 degree and I get RB sin 45 है तो इन RB cos 45 एंड RB sin 45 में हम लोग यहाँ पर समेशन ऑफ होरिजेंटल फोर्स एंड समेशन ऑफ वर्टिकल होरिजेंटल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स तो सम ऑफ होरिजेंटल फोर्स कितना होगा बेटा ना RW इक्वल टू कितना होगा RB cos 45 cos 45 कितना बेटा 1/√2 so I can write that RW equal to RB by √2 cos 45 मेरे बेटा this is 40 degree cos 40 degree है अब cos 40 ର वैल्यू कितना चला cos 40 equal to 3/4 ना so you can directly RB into 3/4 so RW equal to कितना चला 3RB by 4 okay got it now after getting this one RW now you have to calculate this one equal to this one so now I can write that summation of vertical force equal to 0 so RB sin 40 not 45 sin 40 degree is equal to कितना आसी बोले mg रे कितना होची वेट ऑफ द नॉब्जेक्ट वेट कितना बेटा 200 न्यूटन तबे sin 40 रो वैल्यू sin 50 रो वैल्यू तो पाई देबा sin 40 रो वैल्यू कितना आसे ना ये वाला निकालने का तरीका है बेटा ठीक है sin 40 के को भारी वाला तो sin 40 कहां का भीतर अछि रे 30 रो 45 भीतर अछि केते डिग्री डिफरेंस 15 डिग्री sin 30 होछि 0.5 एटा केते अछि 0.7 ना तो 0.7 असला ताको भीतर डिफरेंस कितना असला 0.2 तो 15 डिग्री पे कितना असला 0.2 1 डिग्री पे कितना असो 0.2 by 15 कितना बार करतो 40 कितना बार करतो 40 तो 40 माने 3 पर 10 so again 10 डिग्री पे कितना आसीबो 0.2 by 15 into 10 हमको दरकार केते 45 तो एटा असला 10 डिग्री रो तो 10 डिग्री वैल्यू कितना असला तो 5 रे काटले 5 10 5 3 15 तो कितना असला 0.4 by 3 10 plus 30 1/2 बुझला तो कितना आसीबो 4 by 30 एलसीएम कितना आसीबो 30 तो 4 plus 15 तो कितना असला 19 by 30 so you can put directly with this value hala so now I can write RB into 19 by 30 is equal to 200 Newton so you can multiply this one and depending upon you पता को 20 भी लिखी थी पर प्लस 20 आसे पर कुछ असुविधा नहीं है तो now 20 कर दिले 2/3 जो चल कितना सो RB into 2/3 let us say 19 equal to 20 है ना तो 20/3 तो 2/3 so now I can write this is 2/3 so this is 600 by 2 so cancel out 300 so you got RB equal to 300 Newton and put the value of RB here you got the RW पता बुझिया ना तो so now I can write that RW is equal to 3/4 into RB how much 300 into 300 so I can write 2 रे काट ले कितना 4 रे काट दो 10 ता 75 75 into 3 75 दिन 150 तापरे 200 225 220 हैला so you got RW क्वेश्चन बुझिया ना तो so from this concept you got the question हैला लिखि दिया आगे then second body का आसे फर्स्ट बॉडी का तो कैसे आसे ओके ना बेटा हां ହେଲା कंडीशन नेक्स्ट
तो वी हैव टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हिंदी कंफर्टेबल ना, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। वीडियो बनाऊँगी ना, अपलोड करके तो सकती हैं कुछ वीडियो बना, ठीक है ना। तो ये पहला वाला कंडीशन हम लोग यहाँ तक बना लिए। अभी सेकंड वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, तो सेकंड कंडीशन बोल रहा है बेटा कि इसी के ऊपर निकालना है तुम लोगों को, ठीक है। इसके ऊपर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, नहीं तो पूरा का पूरा इक्वल उसी टाइप का होगा, समझ में आ रही है। तो अभी देखो, अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं, इसके ऊपर ले रहे हैं, ये बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहला चीज इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है तुम लोगों को। तो एक चीज है कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसको एक फोर्स दे रहा है ना, मतलब ये, अभी इस फोर्स को क्या होगा, इसको तुम लोग इधर इधर ले लो, ये वाला फोर्स, ठीक है। हमेशा याद रखना तुम लोगों को कि ये इसके ऊपर जितना फोर्स दे रहा है ना, उतना ही फोर्स इसके ऊपर आ रहा हो। इसका मतलब आरबी तुम लोग एक बार निकाल लिया ना, कितना निकला था आरबी, 300 आरबी निकला ना 300। अगर आरबी तुम लोग का 300 हुआ, तो यहां पर देख लो, सबसे पहले यहां पर आ जाओ। तो ये वाला फोर्स के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर ना, ठीक है, ये जो फोर्स आएगा इसके मदद से, वो भी कितना होगा, 300। बुझिएला, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको जितना फोर्स देगा, ये भी इसको उतना ही फोर्स देगा। ये सिर्फ तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। अभी ये तुम लोग का बॉडी, अभी ठीक है ना। तो ना द क्वेश्चन इज दैट कि ये है तुम लोग का बॉडी, ठीक है। सबसे पहले इसका डब्ल्यू किधर है, नीचे, तो रिएक्शन किधर होगा, ऊपर। तो अभी रिएक्शन इसका ऊपर ले लेते हैं, कितना होगा बेटा, जितना वेट होता है उतना ही होता है ना। लेकिन यहां पर रिएक्शन आर डब्ल्यू होगा, कितना होगा, आर डब्ल्यू। क्यों होगा आर डब्ल्यू, क्योंकि बेटा पहले तो इसका खुद का वेट कितना है, 200 है। अभी इसके ऊपर और एक आदमी बैठा हुआ है, तो उसका भी तो वेट उसी के ऊपर लगे ना, बुझे उसी जोड़े अच्छी एक जन है यहाँ पर 200, और हम बैठ गए इसके ऊपर, ठीक है। मेरा वेट कितना है, 200, मेरे ऊपर कोई भी आदमी बैठ गया, उसका 300 है, तो टोटल कितना हुआ, 500। तो मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा ऊपर, तो वो एक आएगा सिर्फ इसी के वजह से कि तो दोनों की वजह से, बुझिए। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स आने वाला है ना, ये इसका वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, सोचो कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर रिएक्शन आएगा, और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो इसके ऊपर कोई एक्शन दे रहे हैं क्या, नहीं ना। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तब जाके ये रिएक्शन देगा। इसका मतलब इसके ऊपर रिएक्शन तभी आएगा जब इसको पुश होगा। तो इसको पुश कौन कर रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अगर ये इसको पुश, मतलब एक फोर्स दे रहा है, तो ये जो फोर्स है ना, इधर आ रहा है सर, इसका कितना कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको भूल जाओ, तो ये वाला फोर्स हम लोग इधर ले लेते हैं, इसका कितना कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट। तो ये कितना है, आर ए इक्वल टू आर बी, मतलब ये कितना है, 300। अच्छा, अभी यहां पर जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये तुम लोग का 40 डिग्री, तो ये कितना होगा, 40 डिग्री। तो इसको कितना कितना लिख सकते हैं, 40 डिग्री। अच्छा, तो हम लोग आर ए कोस 40 लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको कितना लिखेंगे, आर ए साइन 40, ठीक है। तो ये आर ए कोस 40 हो गया, ये आर ए साइन 40 हो गया, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब ये जो रिएक्शन ड्यू टू वॉल है, ये ओनली किसके बस है, ये वाला। तो अगर ये मिल गया हम लोगों को, तो रिएक्शन ड्यू टू वॉल मिल गया, आ रहा है समझ में। तो हम लोग क्या कितना निकालेंगे ना, दिस इज आर ए इंटू कॉस 40, कॉस 40 कितना था, 3/4। तो आर ए कितना है, 300 इंटू 3/4। तो इसको सॉल्व कर लिया, 75, जितना होगा आंसर। कोई दिक्कत, मिल गई है, ठीक है। तो दिस वन इक्वल टू कितना होगा, आर डब्ल्यू, बिकॉज आर डब्ल्यू इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आर ए। आर ए की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोड्यूस है, उसी की वजह से यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है। अगर ये ऊपर वाला वेट नहीं होता, तो यहाँ पर फोर्स ही नहीं आता, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा, रिएक्शन ड्यू टू फ्लोर। ये कितना देगा, पहले पहले तो 200 है, इसका खुद का वजह से, मतलब सोचो कि यहाँ पर तुम दोनों में से कोई है, ऊपर 200 न्यूटन है, तो पहले कितना दे रहे थे, 200, फिर ऊपर एक जन बैठ गया, फिर दिया वो 100, तो टोटल कितना हुआ, 300। तो तुमको संभालने के लिए कितना हुआ, 300, ठीक है। तो पहले हम लोग 200 इसके वजह से, और ये वाला जो फोर्स जा रहा था ना, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है। तो ये कितना है, आर ए साइन 40। तो आर ए साइन 40 कितना निकाले थे,
300 इंटू साइन 40 कितना था 20/23, तो हम लोग प्लस 300 इंटू 2/3, तो कितना 200, टोटल कितना हुआ 400 टोटल। ना ये गलती हो गया, इतना तो नहीं हो सकता होगा। थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, कंडीशन यही है, कंडीशन यही है, समझ में आ रहे, तो पूरा 200 नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का कम रहेगा, ये 400 से कम होगा, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। देख लेना कहीं पर आर इक्वल कितना होगा ना, इसका खुद का वेट 200 प्लस ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा था बेटा आरबी इक्वल टू आर ए, तो आरबी हम लोग का कितना निकला था बेटा, आरबी निकला था 300 निकला था 300, तो अगर आरबी 300 हुआ, 300 ये हो गया cos 40 और ये हो गया sin 40, तो 300 इंटू साइन 40 कितना होगा, तो 300 इंटू साइन 40 थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, कहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ठीक है, लेकिन प्रोसीडियर कैलकुलेशन तुम लोग और एक बार कर दो, घर पे कर लेना इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ रही समझ में, बुझिए ला लिखियो, सेकेंड बॉडी यहाँ पर ना, सेकेंड बॉडी के लिए क्या निकाले बेटा, पहले ये जो ऊपर से फोर्स आ रहा है उसके वजह से, ठीक है, ये फोर्स की वजह से बेटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकला, वर्टिकल कंपोनेंट निकला, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना होगा रिएक्शन ड्यू टू वाल भी उतना ही होगा, लेकिन जो वर्टिकल फोर्स निकला, वो वर्टिकल कंपोनेंट को इसका खुद का वेट 200 दोनों मिलके टोटल रिएक्शन ड्यू टू फ्लोर हो जाएगा, ठीक है, इतना ही है, लिख लो। अभी देखो नेक्स्ट बेटा भार्गव निकालो अपना जो क्वेश्चन था, डाउट, ठीक है, क्या क्वेश्चन था 17 नंबर, ठीक है, which of the following is the unit vector perpendicular to A and B, which of the following unit vector perpendicular to A and B, चला, अच्छा देखो परपेंडिकुलर, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किस टाइप का चीज था बेटा, सोचो कि ये ए है और ए बी को जा रहा है, ठीक है, तो अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ, तो दिस वन विल फॉलो राइट हैंड थंब रूल, ए टू बी इज मूविंग, तो द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आ रहा है समझ में, तो यहां पर जो इसका जो फोर्स निकलेगा ना, मतलब ए क्रॉस बी का जो ओरिजिनल डायरेक्शन निकलेगा, ये कहां आएगा ऊपर, तो इसको हम लोग एन के बोल, आ रहा है समझ में, तो इसका मतलब अगर ए वेक्टर ए एंड बी दो वेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर निकलेगा ना, वो यूनिट वेक्टर ए को भी एंड बी को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल कितना होगा, ए बी साइन थीटा एन के, ये तो फॉर्मूला है ना, तो यहां पर होगा तो ए क्रॉस बी बाई ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी बाई ए बी साइन थीटा, तो यहां पर वैल्यू होगा ए क्रॉस बी बाई ए बी साइन थीटा, आंसर कितना, देख लो आंसर देखो, नहीं दिया हुआ कैसे, 16 पर कितना नंबर ये वाला 17 नंबर, ठीक है, ये वाला आंसर होगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर नहीं बोलता तुम लोग, परपेंडिकुलर कोई नहीं था, कौन कहता परपेंडिकुलर जितने कहला
तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो परपेंडिकुलर हबार अछि ना, सेटा तो कोई थिली कोई थिले पर क्लास नथिलो कि थीटा जहां को लागि थिवो तर केमती आसले भी बुझीथिले बोधे, है ना। तो थीटा जहां को लगी थी, जिसको थीटा लगा हुआ है वो कोस थीटा होगा, मतलब एफ है तो एफ कोस थीटा, और ये हो गया एफ साइन थीटा। अगर थीटा इसको लग गया तो ये हो गया एफ कोस थीटा, और ये हो गया एफ, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद आउट कौन है 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट गुड़ा ये थियोरेटिकल था यार, सबको मन रखियो ठीक है। इसमें से बोल रहा है बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ट्रांसलेटेड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन a plane, which of the following statement true, when the coordinate axes are translated the component of a vector in a plane changes, when the coordinate axes are rotated through some angle components of the vector change but vector magnitude remain constant. Sum of a and b is r, sum of a and b is r, if the magnitude of a alone is increased, angle between a, b and r is decreased. Condition देखिए, the cross product of 3i cap and 4j cap is 12 पूरा होगा ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना है, आगे प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बोल रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब सोचो कि तुम लोग को बोल रहा है कि आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दिया गया 3i कैप क्रॉस 4j कैप, तो ये कितना होगा 12 के कैप, तो ओनली कितना दे रहा है 12, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, स्केलर में दे दिया तो डी नहीं होगा। तो उसके बाद सी, इफ सम ऑफ ए एंड बी इज आर, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है आर है। सोचो कि ये ए है, ठीक है, और दूसरा ये क्या है बी है, तो बोला कि ए एंड बी इज कितना है आर रिजल्टेंट, ठीक है। तो बोला कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज एलोन इज इंक्रीज्ड, एंगल बिटवीन बी एंड आर डिक्रीज, मतलब बोला कि सोचो कि ए का वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो किसका फोर्स ज्यादा हुआ ये, तो रिजल्टेंट किसका और झुकेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी एंड आर के बीच में एंगल बढ़ा ना घटा, बढ़ गया, बोल क्या रहा है यहाँ पर डिक्रीज, मतलब नहीं होगा, नहीं बुझिए नहीं आता कोई भी, मतलब और एक बार बोल देते, देखो एक एंगल यहाँ पर ये 30 है 30 है, इसका रिजल्टेंट कितना होगा बीच में ही आएगा 45, अगर ये 40 हो जाता ना तो रिजल्टेंट ऊपर हो जाएगा, जो ज्यादा होगा उसके और ही रिजल्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद दो कंडीशन खत्म, बाकी बचा व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू सम एंगल, कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू सम एंगल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर चेंजेस बट वेक्टर मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। सोचो कि ये मेरा एक फोर्स है F20 न्यूटन है, ठीक है, तो पहले ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये हमारा वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट था ना, तो पहले का एंगल सोचो कि 45 डिग्री था। तो उसके बाद बोल रहा है क्या कि इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू सम एंगल, इसको थोड़ा सा हम लोग रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। रोटेट करने के बाद इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये वाला ऐसे हो गया सोचो, तो ये 45 डिग्री कितना हो गया 30 डिग्री। तो पहले निकाल लेते बेटा 20, ये cos 30 है, पहले निकाल लेता 20 cos 45, समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब 20 cos 30 जितना होगा 20 cos 45 उतना होगा क्या, बुझ रहा ना, बुझ रहे ना। तो मैग्नीट्यूड सम कैसा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो, सो द मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, वेक्टर चेंजेस बट द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर चेंजेस बट द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। हाँ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट होगा, मतलब ये वाला वैल्यू 20 है ना,
ये 20 रहेगा, ठीक है। लेकिन थ्रो फ्रॉम एंगल द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर चेंजेस, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर चेंज होगा, ठीक है। आंसर देखो बीटा अच्छी बी तो बी होगा, बी होगा, हाँ बुझल ना तो बी तापर नेक्स्ट 22 the force which meet at one point but their lines of action do not lie on the one plane are called the force which are meet at one point, ठीक है। देखो यहाँ पर द फोर्स व्हिच मीट एट वन पॉइंट, फोर्स जो मैंने गोटे पॉइंट रे ही मीट करछंती बुझला, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई माने कोन हला एक प्लेन रे से माने लाई करनाती अलग अलग प्लेन रो मारी बसंती बुझला कि नहीं, तले ताकू कोन को जीवो को इनिशियल वेक्टर को जीवो नॉन कोप्लानर नॉन कोकरेंट फोर्स होना, नॉन कोप्लानर प्लानर हुए तो नॉन कोप्लानर तो होबो है, नॉन कोप्लानर concurrent forces बीटा वन चलो अच्छे ना देखो ना 22 हाँ हाँ ठीक है बीटा तापर 26 the vector sum of two forces is perpendicular to their vector difference, huh? The vector sum of two forces is perpendicular to their vector difference in case of the force are not equal to each other in magnitude, are parallel, are perpendicular, are equal to each other in magnitude. The vector sum of two forces is perpendicular to their vector difference. अच्छा vector sum टा is perpendicular to the vector difference. तो इसको बोल डायग्राम करिवो वेक्टर सम इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस, तो लेट अस मुकले एटा मोर ए वेक्टर एटा मोर बी वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल टू केते अछि बी वेक्टर, तो एटा 45 डिग्री आसीबो ए प्लस बी हला एटा रिजल्टेंट आसीबो, तो एबे मुझे तळको करिबे एटा कोन आसीबो माइनस बी, तो यार रिजल्टेंट केते आसीबो एपट आसीबो आर इक्वल केते आसीबो ए माइनस बी, एटा केते आसीबो 45 डिग्री, तो यांके भीतर एंगल केते आसला 90 डिग्री, तो वेक्टर सम और वेक्टर या भीतर समान केते आसला जेतोल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कोन बोन देला तुम ये शक्ति और जी अरे केडी 22 ना, तो 26 आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर पैरेलल, आर परपेंडिकुलर, आर इक्वल टू ईच अदर इन इक्वल टू ईच अदर वाला हला इक्वल जदि न होबो त एंगल 45 डिग्री होबनी बुझियलानी ना कोन एटा देख ना कहले जदि ए एदिरा इक्वल न होबे यदि इक्वल न होचंती ताले याको भीतर जो रिजल्टेंट आसीबो सेटा 45 डिग्री करबानी हला, तो एटा दीटा सर समान आर परपेंडिकुलर होबो हला, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होबा दरकार, नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड इक्वल होबा दरकार, अच्छा परपेंडिकुलर तो सब कंडीशन होबन ना, अच्छा 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 रो ठीक है देखि दवा जदि मु करिली कोनटा करले रे पोस्टा जदि गुटे 10 न्यूटन अछि 20 न्यूटन आउट हो 30 न्यूटन हेलो, अच्छा 10 20 कर दवा भलो हो 10 आउ 20, तो रिजल्टेंट एंगल की केते हो रे ए बेटा देखो रिजल्टेंट एंगल केते हो सेटा इक्वल टू 10 इनवर्स b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, b केते एटा b 10 sin थीटा यस से कोन कहि कोन कहले ना a प्लस b और a माइनस b टा परस्पर को परपेंडिकुलर होबा दरकार, तो कोन कंडीशन होबो तो मुझे परपेंडिकुलर कहबे ताले धर जो a प्लस b वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू a माइनस b वेक्टर रो मैग्नीट्यूड, तो a प्लस b
A vector plus B vector